In this part of the lesson, this is introduction to Euclid's geometry. This part from session 2020-21 is non-accessible. Means in the examination it will be not asked, but as a periodic test or as a multiple choice question, discussion, group discussion, it may be, and it is very useful in geometry. Actually, what we have learned about geometry till date, it is all about due to Euclid's. He was a mathematician, great mathematician, and called father of geometry. Father of geometry. Why? Actually, Pythagoras, you well known, Thales, you must know about this mathematician. They are long back ago, I think more than 5,000 years. The civilization like Babylonians, Indus Valley civilization, as well as in the country like Egypt, China, Greece, India itself, people were using geometry because of the existence, because of the emergence of the geometry by the great philosopher Pythagoras, Thales, Archimedes, etc. Why Euclid then called father of geometry? Because before that, all the concept of the geometry are in haphazard manner. Pythagoras told something, Thales told something, but that is not in anywhere in record. Euclid's done that all the concept, actually he was too a great mathematician, philosopher. So इनके पहले जो कुछ भी ज्योमेट्री में था, जो ये जानते थे, जो उस समय तक चली आ रही थी चीजें, कंसेप्ट चली आ रही थी, और what he has to introduce, he had done a great work in mathematics, that all the concept, whether he used or his ancestral used, he convert into a book. All the concept he had collected and write down a book that is called Element. That was called Element. कह सकते हो कि मैथ का ग्रंथ है. मैथ का क्या है? ग्रंथ, जो कि यूक्लिड साहब ने दिया था. He was also from Greece. Thales was a, Thales was a disciple of Pythagoras, and Pythagoras as well as, here is Euclid, around about 2400 before, 2500 before ago, his existence was in inverse. So he had published a book called Elements. Okay. So all of his, what they create, that is called, he is from Alexandria in Egypt, teacher of mathematics. He collected all the known work and arranged in his famous treatise, that is called Granth, which I said Elements. And Elements is in 21 or 23 parts. I think it is called a book into 13 parts, 13 chapters. This Element is in 13 chapters, and each chapter is called a book. Each chapter is called a book. What he had done? He has collected all the concept which he knew, and he has given the definition of axioms, postulates, I am giving you afterwards, and the terms used in geometry like points,
lines, planes, etc. And this is not that Euclid has given this one, he is collected in his book Elements. So, and all these terms are in his first book of the Granth, Treatise Elements. He has mentioned some 23 definitions. 23 definitions, out of which here 7 are listed, important. That a point, the first thing is point. Is that which has no part, मतलब ये मिस्टर इंडिया है, ये दिखाई नहीं देता, इसका कोई चीज नहीं है, कोई हिस्सा नहीं, कोई डायमेंशन नहीं है. Neither it has length, breadth, height, depth, nothing. So a point is what? और ना सोचो ऐसा कौन सा चीज है जो कुछ है नहीं फिर भी वो है. So these are the undefined terms. It is taken for granted. Then comes a line. The second undefined term is breathless. Breathless length. बिना breath का एक length है. Later on you will discuss the point. Line is a collection of points. Line is a collection of points. And point is what? Has no part. Line is a collection of point and point has no part. Point जिसका कोई हिस्सा ही नहीं, कुछ एरिया स्पेस नहीं ऑक्युपाई करता, और वैसे सारे इनविजिबल थिंग्स मिलकर एक लाइन बना दें. इट इज जस्ट लाइक अनडिफाइंड थिंग्स. सो लाइन. सो दिस इज बाय कंसेप्ट. द एंड्स ऑफ लाइन आर कॉल्ड पॉइंट. द एंड्स ऑफ लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स. नाउ those days line are said to be what today we said line segment. Today we said line segment. Those days they are called line. Now fourth one is a straight line is a line which lies evenly, with the points on itself. इसका मतलब समझना है. मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट अगर एक साथ मिले हुए हों और इवनली, मतलब अगर किसी एक तरफ से हम एक पॉइंट के पीछे से देखें तो सारे पॉइंट उसके पीछे छिपे हुए दिखाई दें, कोई इधर जिग जैग ना हो, लाइज इवनली, तो इससे बना हुआ चीज जो है वो हो गया लाइन. ओके. पॉइंट को इमेजिनरी हम डॉट से डिनोट करते हैं, एक डॉट से. बट यू थिंक नाउ इट इज डॉट हैज अ डायमेंशन इन माइक्रोन, बट symbolically we use a point as a line, a point as a dot of the sharp pencil. Now fifth one is a surface. Nowadays it is called plane. Is that which has length and breadth only. Those days the rectangular piece is called only surface. Not all surface are, because if you take a circular plane, do you think it has a length or breadth? No, that is not. But those days surface is only said which has length and breadth. These are the concept used earlier, right about I think more than 4,000 years ago. Now sixth one is the edges of surface. किसी भी surface का एक edge होता है, एक किनारा होता है, like that इस book में एक ये edge है ना. but फटा अगर कोई round वाला हो उसमें भी edge होगा. So a surface that which has length and breadth, the edge of the surface are lines. The edges of a surface are lines. So certainly in this concept circular surface is not taken, because in circular surfaces you will find the edges are in circular arc. Edges are arc. So those days edges of the surface are taken as line. A plane. Now as you see in line, the point lies evenly on it. Plane is called a plane surface. बहुत सारे लाइन रख दिए गए एक प्लेन सरफेस पे, अगर सब एक दूसरे के पीछे ढके हुए हों, मतलब साइड से अगर देखें, नीचे से अगर देखें,
just like if you see like that one as this one, इस प्लेन पे लाइन रखा हुआ है, एक लाइन के पीछे सारे लाइन अगर दिखाई देने बंद हो जाए तो हम कहेंगे कि they lies on evenly. So the plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines. All lines should be straight lines on itself. So these are undefined. These are 7 definitions listed in book number 1, in which Euclid has given 23 definitions. Now in this, point, line, breadth, length, surface, edges, plane, all these terms are said to be undefined terms. Okay. But for intuitive feelings, by taking for granted, we have taken as this term to be undefined, and still it is undefined. So we represent, just as I said, we represent a point as a dot as a point, a straight line as a line segment. Now similar problems, definition 2 above, that breadth and length, neither of which has been defined. ना तो breadth defined है कि breadth क्या होता है भाई, breadth अगर वो पॉइंट से कंटेन कर रहा हुआ उसकी विड्थ कितनी हो कहेंगे हम लोग. और फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक दैट ज्योमेट्री इज एन अब्सर्ड थिंग. रियल लाइफ में ज्योमेट्री नहीं होता है. बट बेबलोनियंस वगैरह जितने भी पहले के लोग थे, जब उन लोगों को जैसे अक्सर बाढ़ आती है ना, नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है कि वो हमेशा शोर बदलते हैं, अपना किनारा बदल देते हैं. बाढ़ आया तो पता चला कि नदी जो है ऐसे हो गया, उसका कटाव है. तो जिन लोगों की ज़मीन जो है इधर थी, ये वाली ज़मीन जो थी वो तो चला गया पानी में, तो ये इधर आ गया. तो अभी भी आज भी जाओगे कहीं गंगा के किनारे जब, तो इन लोग का आपस में डिसीजन, तो भाई ये तेरा कट गया ज़मीन मेरा, तो ये इधर वाला हो गया मेरा. तो ये मेजरमेंट की प्रॉब्लम तब आती थी तो लोगों को ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी. ठीक है ना. सो जो अनडिफाइंड टर्म्स थे उसको उन्होंने ऐसे ही ले लिया, मान लिया कि ये होता है, इसको डिफाइन करने की मतलब कि क्यों होता है नहीं, बस मान लो कि ये होता है. नाउ स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज. अब जैसे मैंने बताया कि एक चीज एक्सियम्स एंड दूसरा पोस्टुलेट्स. अभी आपको बता दूं कि ये पोस्टुलेट्स जो है अब आउटडेटेड हो गया. पोस्टुलेट की जगह हम लोग अब सिर्फ एक्सियम्स ही यूज करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स? The axioms are those concept which is taken as a truth. ये होता है, मान लिया गया, but there is no proof for that. And same thing is postulates. So what Euclid differentiate between these two? He had said that axioms are those concept which is taken as a true concept without considering its proof in the branch of mathematics. Mathematics बहुत सारे, ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, अलजेब्रा भी है, अरिथमेटिक है. तो ज्योमेट्री छोड़कर जो बाकी चीजों में लगा उसको उन्होंने कंसेप्ट को यूज किया, उसको कहा एक्सियम. और जो ऐसे कंसेप्ट पर्टिकुलरली ज्योमेट्री में यूज हुए उसको उन्होंने कहा पोस्टुलेट्स. And geometry is what? At that time geometry and mathematics are different. So आज के डेट में geometry is the part of mathematics. So whatever the postulates may be, they are now called axioms. Axioms is what? Which has no proof. And there are 7 Euclid's axioms. Euclid's हमें जो 9th में पढ़ने हैं, Euclid's के साथ बहुत सारे होते हैं, 7 axioms पढ़ने हैं और 5 postulates पढ़ने हैं. क्या कहा उन्होंने? पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ अब ये तो सर हम लोग जानते ही हैं कि सर जो ऐसे चीज जो किसी एक चीज से इक्वल हो, जैसे खासकर हम दुकान में जाते हैं, 1 किलो का सामान खरीदते हैं तो क्या करता है दुकानदार? अपने बैलेंस के एक तरफ 1 किलो का वजन रखता है और दूसरी तरफ जो है सामान रखता है. तो हम लोग क्या करते हैं, 1 किलो के बराबर सामान खरीद के लाते हैं.
तो वो अच्छा, समटाइम देखो सब्जी वाले के पास, उसके पास किलो नहीं होता है 2, तो 1 किलो के बराबर सामान वजन करके फिर उधर ही वो 1 किलो का वाट रखता है, 2 किलो तौल लेता है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू क्या हुआ, सामान जो था वो 1 किलो का था। थिंग्स विच आर इक्वल टू, दो बच्चों का उम्र नहीं मालूम, लेकिन एक तीसरे बच्चे की उम्र मालूम है कि वो 10 साल का है, और मैं ये कहूँ कि ये दोनों बच्चे की उम्र भी इस बच्चे के बराबर है, तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों बच्चों की उम्र भी 10 साल है। नाउ सेकंड इज, इफ इक्वल्स are added to equals, the whole are equal, the wholes are equal। दो इक्वल चीज है, मान लो 2 आइटम है, ये दोनों को कहा गया इक्वल है। अगर इधर भी मैं 2 केजी और सामान जोड़ दूं, इधर भी 2 केजी और सामान जोड़ दूं, तो ये जो रिजल्ट आया वो भी इक्वल होगा। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज, दिस इज एक्सियम, इसका कोई प्रूफ नहीं है। Now third one is same, added के जगह subtracted। If equals are subtracted from equals, the remainder are equals, the remainders जो बचा हुआ चीज है are equal। चौथा क्या है, ठीक उसी तरह जब इक्वल से इसमें आइटम में से 1 किलो कम कर लें तो भी जो बचेगा वो इक्वल ही होगा। थिंग्स विच coincides, now this is congruency, things which coincide to each other, coincide to each other, are equal, are equal। अभी देखो एक पेज जो मैं लिख रहा हूं उसके पेज के जस्ट पीछे एक पेज है, ठीक है, तो ये एक दूसरे पेज को पूरी तरह ढक लिया, नीचे वाला पेज भी इसको पूरी तरह ढक लेगा, तो ये दोनों पेज को क्या कहेंगे, दोनों पेज इक्वल हैं। दिस इज यूज्ड इन कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फिफ्थ वन, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज, एंड दिस इज अगेन यू कैन नॉट प्रूव ग्रेटर देन द पार्ट। सिंपल, मान लो ये पूरी पेज है, इसमें से कोई भी टुकड़ा काट के अगर निकाल दूं तो छोटा ही होगा। थैंक यू। होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब सपोज कर लो ये एक पेज है, दिस इज होल। अब इफ यू ट्राई टू टीयर सम पार्ट ऑफ द पेपर, नाउ certainly we know that this part is much less than the whole, but when you tear this part the whole vanishes। जो वो पूरा होल था वो तो अब नहीं मिलेगा, हम कंपेयर फिर इसको किससे करें, क्या पता ये बड़ा हो जाए। सपोज हमने बहुत सारा हिस्सा काट के निकाल लिया अलग, तो जहाँ से भी आप पूरे हिस्से से अगर कोई हिस्सा काट के निकालते हो तो होल तो गायब हो जाता है, तो पार्ट का कंपैरिजन किससे करें। बट ये इंट्यूसिव आइडिया कह रहे हैं यार होल से वो बाहर निकला है तो जरूर वो होल तो बड़ा ही होगा ना। सो अगेन वी आर टेकन एज एक्सियम्स बिकॉज इट इज ट्रू but we cannot prove the whole is great, and this one is the fifth statement is said to be universal truth, universal truth, ये होता ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। Sixth part is, sixth axiom, things which are double to one, things which are double of the same things, सेम थिंग, किसी एक चीज़ का डबल हो, अगर दो, मान लो जैसे 1 किलो का कोई सामान था उसके डबल हम 3-4 जगह रख दे तो वो सब भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, आर इक्वल टू वन अनदर। एंड द लास्ट वन, वो डबल था इसको हाफ कर दो। थिंग्स विच आर हाफ्स of the same things are equal to one another। किसी एक चीज़ के जितना भी वो उसका वजन हो, वेट हो, लेंथ हो, उसका हाफ अगर हम 2-4 जगह लें तो वो सब भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो these are 7 axioms। axioms means, axiom is what, एक्सियम्स जो है इट इज़ यूज्ड इन ओनली मैथमेटिक्स, थ्रू आउट मैथमेटिक्स, नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। ये खासकर केवल ज्योमेट्री से लिंक हो ये जरूरी नहीं है,
ये पूरे जो मैथमेटिक्स के सारे ब्रांच में यूज हो रहा हो उसको एक्सियम्स कहते हैं। एंड यूक्लिड्स ने कहा कि जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज हो, which is particularly used in geometry, that concept is called postulates, and that is a truth but without any proof. Okay, now moving on the others, so what he has taken as postulates. So in this very class we learn about 5 postulates which Euclid has given, considered as postulates. What is that? It is, first postulate says 5 postulates. 5 postulates. First one is, a straight line may be, straight line, देखो ज्योमेट्री की बात हो गई, a straight line may be drawn from one point to any other point, ये एक पोस्टुलेट, इसका कोई प्रूफ, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी एक दूसरे पॉइंट की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कहोगे सर ये कौन सा चीज़ हुआ, लेकिन जब ये पहली बार दिया गया होगा ना तो उस समय ये बड़ी बात होगी। आज हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन when whoever given it, when it was the first time, it is certainly a concept, और बहुत लोगों ने इस पर चर्चा भी किया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होना चाहिए। अच्छा, इसी पर एक्सियम्स बन गया, हालांकि वो भी ज्योमेट्री में यूज हुआ, लेकिन यूक्लिड्स के बाद उन्होंने कहा वो क्या था कि गिवन टू डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, सॉरी गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, नॉट लाइन्स, there is a unique line, unique means इकलौता, line passes through them, कह रहा है कि अगर ये 2 गिवन पॉइंट है तो इससे आप सिर्फ एक ही लाइन पास करा सकते हो। अभी इनके फर्स्ट पोस्टुलेट से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट हम ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे लाइन, सॉरी इस पॉइंट से हमने एक इधर भी लाइन ड्रा कर दिया, इस पॉइंट को इधर ड्रा कर दिया, उसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट के तरफ भी एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वे थ्रू दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स, हो सकता है ना, क्योंकि इसके अराउंड we must have infinitely many points, so we can draw a straight line from this very point to another point, and since there are infinitely many points, so through this point we draw infinitely many line, and from these sets of line there is only one line which can pass through this point. This is again in the neighbor of this point, इसके अराउंड में ये पॉइंट है तो इसके थ्रू एक लाइन होगा, क्योंकि वहाँ तो कह रहे एक ही लाइन होगा। तो वहाँ से एक्सियम निकाला कि भाई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से 2 अलग अलग पॉइंट अगर लोगे तो उससे सिर्फ एक लाइन आप ड्रा कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट्स एंड दिस इज एक्सियम बेस्ड ऑन दिस पोस्टुलेट्स। व्हाट इज सेकेंड वन? अ टर्मिनेटेड लाइन, माइंडेड, टर्मिनेटेड सिनेमा देखो, टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely। यहाँ पर टर्मिनेटेड लाइन हो गया लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा लाइन जो टर्मिनेट कर गया दोनों तरफ, लाइन सेगमेंट, ये यूक्लिड्स का दिया हुआ। और कहा कि कोई भी लाइन सेगमेंट को आप दोनों तरफ जितना चाहो बढ़ा सकते हो, इट बिकम्स अ लाइन। ये उनका पोस्टुलेट था। अब ये भी कोई प्रूफ तो है नहीं, हम भी बढ़ा ही सकते हैं, हम जितना चाहें कितना बढ़ा सकते हैं, जितना हमारा रीच होगा उतना ही बढ़ा पाएंगे ना, लेकिन कह सकते हो हाँ सर उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नाउ थर्ड वन इज मोर इंटरेस्टिंग। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ओके, कह रहा है यूक्लिड ने कहा कि एक सेंटर लेके और एक रेडियस लेके
आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, कहो कि यही तो करते हैं सर हम, लेकिन यस, ये तब उन्होंने नाम दिया होगा, जब ऐसा हुआ होगा तो एक नाम दिया होगा कि ये सर्किल है भाई, एक सेंटर हुआ, ये रेडियस हुआ, वी कैन ड्रॉ ए सर्किल। द फोर्थ वन इज all right angles are equal to one another। वेरी फनी, वाह, ये राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर को भी कह सकते हैं ना। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एंड पांचवा, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पहले इसके स्टेटमेंट को समझिएगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, दो अलग टू स्ट्रेट लाइन्स, makes the इंटीरियर एंगल्स, देखो कह रहा है कि एक लाइन, दो अलग लाइन पर ये एक लाइन फॉल कर रहा है, गिर रहा है, so these are the two lines, and this line is falling on these two. So the interior angles, straight line makes the interior angles on the same side of it taken together, इसको भी आप समझिए, less than two right angles. One right angle is 90 degree, two right angles is 180 degree. Then the straight line, if produced, दोनों straight line जिस पे वो गिर रहा है, इस पे और इस पे, produced meet on that side on which the sum of interior angles is less than two right angles. Okay, क्या कर रहा है सेंटेंस को, a straight line falling on two straight lines, a straight line falling to two straight lines makes the interior angles on the same side। इंटीरियर अंदर के, तो ये इंटीरियर हो गए, ये इंटीरियर हो गया, ये भी इंटीरियर हो गया, ये भी, देयर आर फोर इंटीरियर, 1 2 3 and 4। so the interior angles on the same side of it, अब सेम साइड ऑफ इट, तो सेम साइड में 1 and 4 हुआ, 1 and 4, या 2 and 3 हुआ, एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 3 ऑन द सेम साइड हुआ। इफ टेकन टुगेदर, दोनों को मिलाकर, चाहे 1 और कह सकते हो 1 + 4 और एंगल नंबर 2 + एंगल नंबर 3 इज लेस देन 2 राइट एंगल, मतलब इन दोनों पेयर 1 + 4 या 2 + 3 में जिस तरफ भी उन दोनों एंगल का सम 180 से छोटा होगा, तो लाइंस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, तो जिस तरफ छोटा होगा उस तरफ जाकर वो दोनों लाइन कहीं न कहीं मिलेंगे ज़रूर, थोड़ा दूर हो सकता है बट मिलेंगे ज़रूर, अगर इन दोनों का सम 180 से छोटा है तो। और ये जो कंसेप्ट है फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी कंसेप्ट से आगे जाके हम लोग पढ़ते हैं कि when two parallel lines are intersected by a transversal, then sum of interior angles is 180 degree। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का सम 180 से कम नहीं है,
तो दो बातें होंगी, या तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा या ज़्यादा होगा। अगर बराबर होगा तो इधर भी दोनों का सम बराबर होगा, क्योंकि चारों एंगल मिलके तो जैसे ये तो 180 होगा टोटल स्ट्रेट लाइन का, ये भी 180 होगा स्ट्रेट लाइन का। तो अगर बराबर हुआ तो इधर भी बराबर हो जाएगा। अगर ये 180 से बड़ा है तो इधर वाले दोनों 180 से छोटा हो, तो लाइन इस तरफ जाके मिल जाने चाहिए। So this fifth postulate is very important, but written in complicated way. Written in complicated way. We are in the fifth postulates of the Euclid. What it said: if a straight line falling on two other lines, then angles on the same interior angles on the same side of the falling lines, if it is they are less than together 180, then when these two lines proceed this way, they meet at one point. Okay, and I said that from here, these very postulates, we find the parallel lines axioms, that when a transversal intersect two parallel lines, the sum of interior angle is 180 degree. You will learn in the next topic, lines and angles. Now here one word come, consistent. What is consistent? If you are given with two or more than two axioms or postulates, a system of axioms you are given, and that are interchangeably used, okay, either postulates or axioms. So when a system of axioms, means at least containing two axioms or more than two, our system is said to be consistent if it is next to impossible to deduce from these axioms another statement that contradicts any of these two axioms or any other axioms previously proved. मीन्स अगर आपने कोई दो एग्जाम्स लिया और उन दोनों से एक ऐसा कंक्लूजन निकला जिससे कि इन दोनों में से कोई एक या दोनों या और कोई पहले का प्रूव किया हुआ एग्जाम्स या पोस्टुलेट्स अगर कंट्राडिक्ट कर जाए, गलत हो जाए, तो कहेंगे कि द सिस्टम ऑफ एग्जाम्स इज नॉट कंसिस्टेंट एंड दिस वे यू विल प्रूव समथिंग बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. ओके, एंड एक्सियम्स जिसका प्रूफ ना हो और ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसका प्रूफ हमें मिल रहा हो, दैट आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और फर्स्ट यू कैन से थ्योरम्स और डिडक्शंस. ओके, these three terms has a proof. The statements must have a proof, but axioms and postulates don't have any proof. And so when a combination of axioms, a system of axioms together with gives another statement which contradicts the fact which is either we have taken in the system or it is already proven or taken as axiom, then we can say that system is inconsistent. So it is impossible to deduce any statement that contradicts any axioms or any previously proved statement. Previously proved statement means propositions, theorems or deductions. Okay. Now, I am giving you one question. A, B, C are 3 points. A, B, C are 3 points. That B lies between A and C. B lies between A and C. Between A and C से एक लाइन तो होगा, एग्जाम कह रहा है ना, पोस्टुलेट्स 1, और ये A और ये B है, सॉरी A और C है, B उनके बीच में कहीं, बीच में मतलब मिडिल में नहीं, कहीं भी लाई कर रहा है. तो यू हैव टू प्रूव दैट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, AB प्लस BC तो AC हो ही रहा है. नहीं, ये होगा प्रूफ एक्सियम से. हियर दिस इज वन थिंग, AB plus BC. AB plus BC is one thing and AC is another thing. This whole is AC and this plus this is this one, AB plus BC. So what we find that AB plus BC coincides with AC, or these two things, AB plus BC and AC
coincides each other, that's why they are equal. That's why AB plus BC and AC coincides each other, one another, so they are equal. They are equal. ऐसे हमें प्रूव करना है. ये प्रूफ हुआ that AB plus BC is equal to AC. Is it clear? Now next one is, if कह रहा है कि prove that equilateral triangle can be constructed on any given line segment. आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया होगा, एक लाइन सेगमेंट से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो. कैसे? टेक दिस एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, दैट ड्रॉ अ सर्किल. यू कैन ड्रॉ अ सर्किल. ओके, हमने ड्रॉ कर लिया एक सर्किल. फिर टेक दिस एज ए सेंटर एंड दिस एज ए रेडियस, यू कैन ड्रॉ अनदर सर्किल. Where these two circles intersect, if you join this, you will get an equilateral triangle. This is the proof. Because the radii of the two circles, ये दोनों रेडियाई किसके हैं? इसके हैं. ये दोनों रेडियाई किसके हैं? तो इसके हैं. रेडियाई आर इक्वल ऑफ द सर्किल, सो द इक्विलेटरल ट्रायंगल. When it is asked that prove that C lies between any 2 points A and B such that AC is equal to BC, then AC must be equal to half of AB. Now AB and C lies between A and C. Here B lies between A and C, but वो कहीं भी था. यहाँ पर इस such a way दिया that AC equal to BC, तो you are required to prove that AC equal to half AB. Very, very funny. Now here you can say by this very problem that AC plus BC is equal to AB, and AC and BC are equal. So I can replace BC by AC, AC plus AC as equal to AB. So twice AC is equal to AB. So what is AC? AC is half of AB. Okay. So this is what first part. Now हमने कहा था फिफ्थ पोस्टुलेट से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग निकलेंगे. तो एक मैथमेटिशियन थे, स्वीडिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर. जॉन प्लेफेयर इनका नाम था, स्वीडिश थे, स्वीडन के थे. इन्होंने क्या कहा? फॉर एवरी लाइन L and for every point P, not lying on L, not lying on the line L, there exists a unique line. There exists a unique line. अकेला कोई लाइन एग्जिस्ट करेगा unique line. There exists a unique line, let it be M, passing through P and parallel to L. Okay, कह रहा है कि there is a line L and there is a point P not lying on L. This is the line L. तो कह रहा है कि अब point P से how many lines you can draw? There are infinitely many lines, but there exists only one line that is parallel to this, and this is equivalent to the fifth postulates. देखो बाकी जो भी लाइन होंगे उस पर जो एक कोई लाइन गिरेगा तो उसके किसी सम मतलब किसी एक तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होगा, तो कहीं ना कहीं मीट करेगा. ये एक ऐसी लाइन होगी जिसके एक तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल का सम चाहे इस तरफ लो चाहे इस तरफ लो 180 से छोटा होगा ही नहीं. अब दोनों तरफ अगर 180 से छोटा होगा नहीं तो दोनों तरफ 180 के बराबर होगा सम. तो ये लाइन कभी भी मिलेगा नहीं. कंसेप्ट कह रहा है फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कर रहा है कि अगर 180 लाइन से इधर छोटा नहीं है, 180 डिग्री से छोटा नहीं है तो इधर नहीं मिलेगा. ओके, अगर इधर भी छोटा नहीं है तो इधर भी नहीं मिलेगा.
अब जब दोनों लाइन बढ़ाने से ना इधर मिले और ना इधर, ना राइट में ना लेफ्ट में मिले, तो इसका मतलब दोनों कहीं मिलेंगे ही नहीं. If they do not meet each other on the same plane, then what they are said to be? They are said to be set of parallel lines. So this statement is called equivalent version, actually easy version of fifth postulates given by Euclid, and this statement is given by John Playfair. So this is also called Playfair axioms. Playfair axioms. And next second equivalent is for two distinct intersecting line here. Intersecting lines cannot be parallel to the same line. अब ये स्टेटमेंट को ध्यान से कह रहा है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ठीक है, मान लो इसको L मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं. तो ये दोनों के दोनों, सपोज हमने कोई एक लाइन ड्रॉ किया, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. अब ये लाइन अगर हम L को बढ़ाएंगे इंटरसेक्ट करेगा, इधर M को भी बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये दोनों के दोनों इस लाइन से पैरेलल नहीं है. ओके, ये कह भी रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हों तो दोनों में से दोनों ही किसी और लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते. तो यहाँ तो खैर दोनों ही पैरेलल नहीं है. अब मान लो एक तीसरा केस में ले रहा हूँ, ऐसे एक लाइन ऐसे ले रहा हूँ, ये सच दैट कि ये इसके पैरेलल है. ओके, तो ये इसके पैरेलल है, बट व्हाट यू सी हियर कि दिस लाइन एंड दिस लाइन व्हेन प्रोड्यूस दे इंटरसेक्ट ईच अदर. तो क्या हुआ यहाँ पर, इन दोनों में से एक तो पैरेलल है लेकिन दूसरा पैरेलल नहीं है. अगर एक और आप लाइन लो जो इसके पैरेलल हो, किसके हो, इसके पैरेलल, तो इसमें देख रहे हैं कि ये तो पैरेलल है लेकिन फिर ये आगे बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. मतलब हमारे पास तीनों केस हमने लिया, एक लाइन इसके पैरेलल, एक लाइन इसके पैरेलल और एक लाइन जो दोनों में से किसी के पैरेलल नहीं है. नाउ यू थिंक, क्या आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई एक ऐसी लाइन है जो दोनों से पैरेलल हो जाए? मतलब वो कोई लाइन आपने P बना लो, कहो कि सर P इज पैरेलल टू L, M एज वेल एज P इज पैरेलल टू L. तो अब सवाल ये है कि अगर M P के भी पैरेलल होगा और L के भी पैरेलल होगा तो M और L को तो आपस में पैरेलल होना चाहिए, लेकिन यहाँ है नहीं. सो दिस इज अगेन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट्स. ठीक है ना. सो ये आपका मेन थिंग यूक्लिड ज्योमेट्री का था, जिसमें आपको ये फॉर नॉन असेसमेंट है, ये आपसे समझिए कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के होंगे वो इसमें से यूज़ किया जाएगा. इज इट दैट? सो ये आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, इसको केवल कंसेप्ट को कुछ अनडिफाइंड टर्म्स मे बी आस्क्ड दैट राइट डाउन टू 3 अनडिफाइंड टर्म्स. एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें कहा जाएगा कि इसमें से कुछ अनडिफाइंड अगर टर्म्स आपको दिख रहा है तो निकाल के बताइए. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.